Why did you start dance and what was the inspiring factor behind that? Why dance? it's a big question. So I actually wanted to be a policeman in my childhood. I used to watch movies a lot. Somewhere I found that policemen are the strongest people on earth. I always wanted to be a policeman. And later when I got out from the boarding school, पूरा ध्यान मेरा डांस की तरफ घूम गया. One of my friends he suggested me, back dancing करके होता है जहाँ पे dancers perform करते हैं, जो भी कोरियोग्राफर सिखाता है. And then you get paid for it. This sounds good. Payment की बात आई है. टीवी पे आना मतलब बहुत बड़ी बात है. एंड मेरे फैमिली में से कभी भी कोई से टीवी पे आया नहीं था. तो ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हुआ एंड वहीं पे मैं और धर्मेश फर्स्ट टाइम दूसरे को मिले. वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई. मैंने कुछ एड फिल्म्स किए. आई वर्क विद टाइगर श्रॉफ, आई वर्क विद श्रद्धा कपूर, प्रभुदेवा सर, रेमो सर, वैसे और बहुत सारे, अक्षय कुमार सर. तो रिसेंटली आई असिस्टेड रेमो सर फॉर वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ हाउसफुल 5. So I wanted to talk to you about the Rocky and Rani Prem Kahani. Ranveer, they had this segment where they did the classical dance, considered feminine माना जाता है उसको. It's not gender based at all. I was so happy to see Ranveer do that thing. कि पहले लोगों का ऐसा बोलना होता था कि यार क्यों नाच रहा है, क्यों क्लासिकल कर रहा है, फिर वो नचनिया वर्ड यूज करते थे. Exactly. बट धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो गया. सर मैन अभी वो करने लगे. It's looking good on them. तो किसी का भी वो लोग सब बनाते नहीं है कि भाई तेरी मम्मी बीमार है या तू गरीब है, ऐसा कभी होता नहीं है. बट ऑफ कोर्स जितने भी आते हैं ऑडिशंस के लिए सभी को पूछा जाता है आपके घर पे कौन कौन है, क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं. सब लोग बताते हैं ये है वो है, मैं ये कर रहा हूँ, खोद के निकालते हैं. फिर सर ने एक गाना सुना. गाने का नाम है हैप्पी आवर. तुम दोनों कोरियोग्राफ करोगे. वाओ. फिर हमने पूरा दिखाया. अब डर तो लग रहा है, मतलब हमने उतना अच्छे से नहीं दिखा क्योंकि सामने सर खड़े उनसे हमने क्या ही फाड़ के दिखाया. एंड उन्होंने फिर साथ में किया. एंड साथ में किया मतलब उन्होंने साथ में फिर परफॉर्म किया हमारे. अच्छा, he learned it. हाँ, वो खड़े खड़े उन्होंने सीख लिया. तब समझा कि भाई ये इंसान बहुत बड़ा खिलाड़ी है. I heard that you have Akshay Kumar's number. अक्षय कुमार को कॉल करो अभी. Yeah. पक्का. Shout out to Healthy Naris. पक्का. Yes. श्योर ना. 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग. Hi guys, welcome back to the Healthy Naris channel, your place for everything fun, fitness, health, and today dance. So today we have a very inspiring guest who has shaped dance industry with his moves and vision. He has choreographed many reality shows, movies, stage performances, and he's won in all. So let's welcome Paul Marshall. Thanks for coming for our podcast. Thank you so much. Thank you so very much.
So we would like to know about your journey. Why did you start dance and what was the inspiring factor behind that? Okay, why dance? It's a big question. Yeah. I think बचपन में सबके सपने कुछ अलग होते हैं. And we never know कि बड़े होके इतना possible होता है वो achieve करना or where life takes us. So I actually wanted to be a policeman in my childhood. I know it sounds funny because I used to watch movies a lot, and somewhere I found कि policemen are the strongest people on earth. So I always wanted to be a policeman. And later when I got into a boarding school for 4 years, then I got into music. So I was a drummer for 3 years. So I was in a band, and then I thought कि I wanted to do something in music. And later when I got out from the boarding school, फिर पूरा ध्यान मेरा डांस की तरफ घूम गया, because I think somewhere डांस में मुझे कुछ भी इन्वेस्ट करना नहीं था apart from my time and my hard work. But money wise मैंने कहीं से ट्रेनिंग ली नहीं, तो मुझे कहीं पर भी पैसे डालने नहीं थे. सो आई थॉट कि यार ये सही है, ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भी पैसे डालने नहीं है, तो मुझे सीखने बहुत मिलेगा. एंड उस टाइम पे दिस वाज लाइक 15 years बैक, तब तो डांस वाज नेवर अ करियर दैट टाइम. इट वाज जस्ट अ पैशन कि भाई अच्छा लगता है तो करो, यहाँ परफॉर्म करो, एंड मोर for competitions, inter-college competition or annual day. And then one of my friends, he suggested me कि बैक डांसिंग करके होता है जहाँ पे डांसर्स परफॉर्म करते हैं, जो भी कोरियोग्राफर सिखाता है, and then you get paid for it. I was like, this sounds good. पेमेंट की बात आ रही है. So I did n number of events as a back dancer. I started with Marathi industry. So I was a folk dancer that time. Folk dance करते करते, and वो भी मैंने सीखा नहीं था, but I was good with pickup. तो पिकअप मेरा अच्छा था, तो जहाँ पर भी मैं गया इवेंट्स के लिए ऑडिशंस दिए, मैंने तुरंत पिकअप किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड. तो फोक डांस करते करते, वेस्टर्न डांस करते करते, थोड़ा सा हिप हॉप करते करते, नाउ आई डू माय ओन स्टाइल, आई डू लिरिकल डांस फॉर्म. एंड जैसे मैंने बैक डांसिंग किया, तो वहाँ से एक दोस्त ने मुझे बताया कि रियलिटी शोज करके भी होता है. उस वक्त बूगी वूगी काफी फेम में था. सो ये टोल्ड मी कि एक क्रेजी कियारे करके एक रियलिटी शो है, जिसका फर्स्ट सीजन तो जा चुका है, सेकंड सीजन आ रहा है, तो उसके लिए ऑडिशन करते हैं. वेयर यू गेट टू परफॉर्म ऑन स्क्रीन, एंड इफ यू विन यू विल गेट अ टाइटल प्लस एक्स अमाउंट. आई वाज लाइक चलो यार, दिस साउंड्स गुड, क्योंकि मुझे टीवी पे आना मतलब बहुत बड़ी बात है. एंड मेरे फैमिली में से कभी भी कोई से टीवी पे आया नहीं था. आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हुआ, एंड वहीं पे मैं और धर्मेश फर्स्ट टाइम दूसरे को मिले. वहां से हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई. एंड सो क्रेजी कियारे सीजन 2, धर्मेश वाज द विनर. मैं मिड शो से मैं आउट हो गया. फिर सीजन 3 के मैंने फिर से ट्राई किया, एंड आई वाज द विनर ऑफ सीजन 3. मी अलोंग विद आशुतोष एंड श्रीकांत आयरे. एंड वहां से फिर जर्नी शुरू हुई. एंड देन लेटर धर्मेश डिड DID सीजन 2. ही गॉट रियली पॉपुलर. फिर उसे मौका मिला DID लिटिल मास्टर्स पे एज अ मेंटोर परफॉर्म करने का, गाइड करने का, कोरियोग्राफ करने का. देन ही कॉल्ड मी कि पॉल, लिटिल मास्टर्स करके एक सीजन आ रहा है, वो साथ में करते हैं, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज है नहीं टेक्निकल चीजों का. नॉलेज तो मुझे भी नहीं था. मैंने बोला चलो साथ में मिलके करते हैं, सीख के कर लेंगे. तो वहां से जो मेरी जर्नी शुरू हुई, टिल डेट आई हैव बीन डूइंग n नंबर ऑफ डांस रियलिटी शोज. उसके अलावा मैंने मूवी सॉन्ग ज्यादा नहीं किए, मैंने कुछ किए लेकिन अच्छा काम किया है. उसके अलावा मैंने कुछ एड फिल्म्स किए. सो आई वर्क विद टाइगर श्रॉफ, आई वर्क विद श्रद्धा कपूर, प्रभुदेवा सर, रेमो सर, एंड वैसे और बहुत सारे, अक्षय कुमार सर. So recently I assisted Remo sir for one of the songs of Household 5, where I got to work with Jacqueline, Nargis, Akshay Kumar, Shreyas Talpade, Jyoti Deshmukh, Johnny Lever, Chunky Pandey, and many more. So yeah. So choreographing reality shows and movies and ad films, how is it different? Like, what is your experience with that? Difference is choreographing for a reality show थोड़ा easy होता है, because you get dancers to choreograph. उन पे करना होता है जो थोड़े बहुत अच्छे होते ही है. मतलब कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो तुरंत पिक करते हैं, एंड कुछ को थोड़ा समझाना पड़ता है, तो वो अलग उसका पूरा फैमिली है. कोरियोग्राफिंग फॉर फिल्म्स इज अ बिग टास्क, बिकॉज द एक्टर्स कम इनटू द फ्रेम. अभी सभी एक्टर्स उतने अच्छे होते नहीं परफॉर्मेंस, एंड जो अच्छे होते भी है तो उनका एक माइनस पॉइंट वो है कि फिर उनके बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं कि ऐसा करते वैसा करते, ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं. सो यू नो, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों में ही है. बट ऑफ कोर्स टीचिंग द एक्टर्स इज ऑलमोस्ट लाइक टीचिंग किड्स.
जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रख के संभाल के प्यार से करना होता है वैसे करके। एंड देन एक्टर्स काफी बार उन लोग वहाँ पे चैलेंज हुआ था कि उन लोग बहुत चेंजेस करते हैं कि यार नहीं मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, जबकि शायद ये ऑडियंस को मजा आ सकता है, बट उनके दिमाग में ऑलरेडी एक होता है एक पिक्चर की नहीं ये दिस विल वर्क, दैट विल वर्क, फिर उन लोग कुछ करके दिखाते हैं जो कई कबार बहुत गंदा होता है, बड़ा मुंह पे नहीं बोल सकते कि यार सर ये बहुत फालतू लग रहा है, तो हमें बहुत प्यार से वो हैंडल करना होता है कि ओके सर दिस लुकिंग नाइस, ये भी ट्राई करते, वो भी ट्राई करते, फिर थोड़ी उनकी बात सुन के थोड़ी अपनी बात रख के देन वी कम अप यू नो ऑन समथिंग ऑन अ रिजल्ट कि ऐसा कुछ करते। सो हाँ ये डिफरेंस है, बट आई थिंक आई एम मोर हैप्पी डूइंग रियलिटी शोज, क्योंकि वहाँ पे फिर कैसा होता है कि पूरा कमांड आपके पास होता है, द स्टेज रिहर्सल्स, द टेक्निकल डे, द शूट डे, या शूट ना काफी टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि शूट का प्रोसेस इतना लंबा होता है, द मीटिंग्स एंड एवरीथिंग, फिर कभी कभार क्या ना आपके डेट्स चेंज हो जाते हैं, फिर आर्टिस्ट का कुछ इश्यू, फिर वो शूट का पूरा दिन भी काफी बहुत लेंदी होता है, मतलब तुरंत शॉट लगाया आर्टिस्ट आया शूट कर लिया वैसा नहीं होता है, आपने शॉट लगाया देन यू वेट फॉर द आर्टिस्ट, फिर आर्टिस्ट वैनिटी में उसको बुलाओ, फिर वो आएगा, फिर वो थोड़ा रुकेगा, वो थोड़े जोक्स क्रैक करेगा, देन वी गो फॉर द टेक, फिर कुछ झोल हो गया देन वापस करो, टाइम टेकिंग भी है, प्रोड्यूसर ने इतने पैसे लगाए, तो काफी कुछ ध्यान रखना होता है। रियलिटी शोज में कैसा ये टाइम स्लॉट है इसमें आपको करना ही है, तो थोड़ा वो फास्ट होता है उसका फेस, तो इसलिए मजा आता है। It's more disciplined. Yeah, it's more disciplined, correct. But is the working hours longer in reality shows or in movies? Like, how is it? And how is the struggle also like for a beginner, or like, what tips do you give? Like? अभी रियलिटी शोज काफी कुछ बदल चुका है। Earlier back when I used to like I was one of the contestants on DID Dance India Dance, उस वक्त तो उतना टाइम का लिमिटेशन था नहीं, तो कई बार ऐसा होता था कि हमारा टेक्निकल चल रहा है रात के 3 बजे तक एंड अगले दिन सुबह 7 बजे का कॉल टाइम है, तो हम लोग कभी कभार मेकअप रूम में सो जाते थे, वहीं पे सो के सुबह उठ के फ्रेश होके हाँ रेडी परफॉर्म कर रहे हैं, पर यहाँ पे नींद भी आ रहा है, हम यॉन कर रहे हैं, फिर हमें चिल्लाया आता था कि ये कंटेस्टेंट्स डोंट स्लीप, गेट अप, ताली बजाओ, हैप्पी मतलब खुश रहो, मस्ती करो, एंजॉय करो, एनकरेज करो, तो वो काफी था उस टाइम पे, बट अभी काफी कुछ सुधर गया है रियलिटी शोज, तो अभी कहीं ना कहीं मतलब 11 तक या 12 तक आपको पैकअप करना ही होता है, क्योंकि अगर उतना इनफ टाइम कंटेस्टेंट्स को मिलना चाहिए फॉर रेस्ट एंड एवरीथिंग, वैसे करके तो काफी बदलाव आया। एंड मूवी सॉन्ग्स आई थिंक जिन्होंने काफी कुछ मूवी सॉन्ग्स कर लिया ना, फॉर देम इट्स फन नाउ। For me, I'm still trying to get into that zone of doing movie songs. मैंने कुछ किए, ज़्यादा किए नहीं, but I think I'm loving it now, धीरे धीरे. So yeah. How is it more challenging, like doing movie songs than doing reality shows? Construct कैसे different है? Because reality shows में the procedure is like you get a theme, so there's a supervising choreographer. जैसे अभी आजकल मैं भी वो करता हूँ. So I don't perform because I'm not a contestant anymore, but I supervise the show. So what I do, we give a theme, we discuss with the channel कि अगले हफ्ते ना ये थीम करते हैं, because this theme might work, और इस थीम के उस दिन जिस दिन टेलीकास्ट होने वाला है उस दिन के अराउंड कुछ तो ये फेस्टिवल आ रहा है, फॉर एग्जांपल गणेश चतुर्थी आ रहा है, सो गणेश जी के अराउंड कुछ थीम देते हैं, अब उसी टाइम पे हम प्लान करते हैं कि कौन से एक आर्टिस्ट को बुलाए ताकि एक अट्रैक्शन मिले, टीआरपी मिले, फॉर एग्जाम्पल गोविंदा को बुला लिया, उनका एक बजट लॉक हो गया, तो अगर गोविंदा आ रहा है तो हम फिर कोरियोग्राफर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि गोविंदा सर आ रहे हैं and Ganesh Chaturthi is the theme. So try and do something around Ganesh Chaturthi. Also try and use Govinda's songs. Okay. So then they start choreography and then they get hardly like 3 days to edit their songs, to lock their songs. You know, songs भी जो लोग बेच like you know they try to sell कि सर ये इस पे करते हैं. Then we think will this work or will this won't work. फिर वो changes होता है. Then they edit the song, they choreograph the entire act. Then शूट के एक दिन पहले टेक्निकल होता है, टेक्निकल के एक दिन पहले स्टेज होता है, स्टेज के एक दिन पहले वी सी दी एक्ट्स, तो हफ्ते में टोटल 7 दिन होते हैं, यहाँ पे 3 दिन उनके गए, 4th डे आई सी दी कोरियोग्राफी सबका, एंड देन आई गिव देम चेंजेस कि भाई ये थोड़ा वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे और अच्छा हो सकता है, दिस द चैनल माइट नॉट लाइक इट, करो। उसके बाद जब स्टेज रिहर्सल होता है उस दिन पे चैनल भी आता है, सो द कंटेस्टेंट द कोरियोग्राफर्स दे डू द स्टेज रिहर्सल्स, मीनवाइल द चैनल कम एंड दे सी द एंटायर एक्ट, फिर उनके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि ये नहीं मजा नहीं आ रहा, वो चेंज करो, वो चेंज करो। कई कबार पहले तो ऐसा होता था कि जहाँ पे द एंटायर एक्ट यूज्ड टू गेट चेंज, मतलब कल टेक्निकल है, कल परफॉर्म करना है, परसों परफॉर्म करना है, तो वो भी होता था, पर अभी उतना होता नहीं है। तो वो चेंजेस के बाद फिर कम्स द टेक्निकल डे वेयर वी डू अ कैमरा रिहर्सल, जहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस आप वही करो 3 बार करना होता है, ताकि फर्स्ट टाइम
एक फुल फिगर फॉर द डायरेक्टर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कोरियोग्राफी, कहाँ लेफ्ट राइट कितना जा रहे हैं. देन दे प्लान कि भाई ये कैमरा लेना है, ये एंगल लेना है, वो एंगल लेना है, जीप आएगा, यहाँ पे ट्रॉली आएगा, यहाँ पे क्लोजअप आएगा. देन दे परफॉर्म अगेन. फिर एक फाइनल रन टू अंडरस्टैंड कि हाँ हमें ये सारे उनके एक्सप्रेशंस, हाथ के पैर के जो सब क्लोजअप मिल रहा है. Then we get the final take. So now we are ready for the shoot, which is the next day. फिर अगले दिन परफॉर्म करना वो है. So ये स्ट्रगल है जहाँ पे चेंजेस का जो होता है दिन 2 दिन, एक इंटरनल प्रीव्यू एंड द सेकंड द चैनल प्रीव्यू. That's the stress for the choreographers and the contestants कि ज्यादा चेंजेस ना हो. जहाँ रही शूट की बात, हुक स्टेप, बाकी डांसिंग, क्योंकि अभी इतना हुक स्टेप के अराउंड पूरी अपनी दुनिया चल रही है. सो बाकी डांसिंग तो चलो ठीक है, बट दे फोकस मोर ऑन द हुक स्टेप कि क्या है. सो वी हैव टू कम अप विद एन नंबर ऑफ ऑप्शंस कि ये वो भले हमें फर्स्ट जो ऑप्शन निकाला तो वो सबसे अच्छा लगा हो, स्टिल एक 10 ऑप्शन निकालो एंड सब ऑप्शंस के हमें वीडियो करके भेजने होते हैं. फिर जब प्रोड्यूसर आता है, डायरेक्टर सेकेंडली, पहले प्रोड्यूसर आएगा, वो देखेगा तो उनके सामने परफॉर्म करके दिखाओ. देन ही विल बी लाइक, पॉल यार इसका ना ये फर्स्ट वाले ऑप्शन का ना फर्स्ट अब अच्छा लग रहा है, पर थर्ड वाले ऑप्शन का ना सेकंड अब अच्छा लग रहा है, कैन वी क्लब दोस. ठीक है ये लो. तो ये सब करने के बाद फिर डायरेक्टर, फिर उनके पॉइंटर्स, ये सब हो गया. प्रोड्यूसर इज लाइकिंग द हुक स्टेप, द डायरेक्टर इज लाइकिंग, दे बोथ ऑन द सेम पेज. नाउ कम्स द आर्टिस्ट, उन्हें भी भेजना होता है. फिर उनके कुछ पॉइंटर्स आते हैं. कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो एकदम ही फ्रीली ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट होता है कि भाई इफ यू आर ओके विद इट कर लो. कुछ चीज होता है कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, ये करो वो करो. एंड देन दे कम अप विद सम रेफरेंसेस. वो लोग ऐसे कुछ रेफरेंसेस दिखाते हैं जो बहुत ही फालतू होते हैं, जो मतलब जिसका कुछ लेन देन बिल्कुल, देयर इज नो लिंक टू द सॉन्ग, टू द लिरिक्स, कुछ नहीं. बट देन दे आर लाइक ये करती है अच्छा लग रहा है, तो उनको मनाना, तो उनको जो मनाना होता है, ये जो हुक स्टेप सेल करने का जो पूरा प्रोसेस है, इज वेरी चैलेंजिंग मूवी सॉन्ग्स वैसे करके. एंड ये एक बार हो भी गया. तो दूसरा चैलेंज वो होता है कि क्योंकि वहां पे एक अगर आपका शिफ्ट वाइज काम होता है, तो शिफ्ट अगर बढ़ गया तो फिर वो एक्स्ट्रा जो बढ़ता है, सबके एक्स्ट्रा चार्जेस बढ़ते हैं, तो वो ध्यान में रखना होता है. ऑल्सो इन द गिवन टाइम पूरा शूट खत्म कर, अभी शूट हो गया, गाना बाहर निकल गया है, रिलीज हो गया है, अब गाने को वायरल करना है, तो वो एक अलग सा टास्क है. क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है हुक स्टेप चैलेंज, वेयर यू हैव टू यू नो फोर्स और रिक्वेस्ट योर पीपल अराउंड कि भाई ये गाना है, ये हुक स्टेप है, प्लीज करो एंड डाल दो, हमें टैग करो, हमें टैग करो, ताकि वो ट्रेंडिंग में रहे करके. सो हाँ, तो ये तो मेरे कुछ चैलेंजेस बताए जो मुझे अभी याद आ रहे थे. इसके अलावा और बहुत कुछ है. I have a question. How do you manage fitness with such a hectic life? Fitness, if you saying like body wise fitness, I'm nowhere around fitness body wise. मैं काफी दूर हूँ. Mentally अगर fitness की बात करें तो I think क्योंकि मेरा तो अभी काफी सालों से हो गया है, so I know the trick around, you know, trick behind handling people and choreographing. जैसे उस टाइम पे मुझे टाइम लगता था कि भाई मैं कैसे क्या कोरियोग्राफी करूँ और क्या कॉन्सेप्ट्स डालूं कि लोगों को अच्छा लगे. पर अब ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे मुझे और मेरी टीम को पता है कि भाई दिस विल वर्क, फॉर श्योर दिस विल वर्क एंड देयर वोंट बी एनी चेंजेस. तो अब आई थिंक दैट कम्स रीवर्क इज लेस नाउ. मतलब ईयर आफ्टर years of experience के बाद आपको आ जाता है कि भाई अभी यही बिकेगा, कि ये फूल बिकेगा, ये ऑरेंज कलर विल वर्क. सो वी नो कि क्या वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो वी आर लाइक ready for the answers वैसे करके. Okay. नहीं, but going back to the world of dance in television format. So television audience is very different, catering to your TV audience and to your movie audience. So how do you? I think it's more family oriented, and then you get your movies, and then the whole concept of it changes. So if in a day, has it ever happened that you have preparing for your television audience, and then you have some shoot for your movie audience, और आपको वो figure out करना होता है कि how do I change all that? वो synchronicity में कितना differences होते हैं, and how do you manage that? I think it's all about the teamwork. So if we have a good enough number of people in a team, then we divide. If I'm doing a reality show, same time if I'm doing a movie song also, same time पे I have a few meetings for an ad film also. So then we divide. कि 3 लोग रियलिटी शोज में बिजी यहाँ पे, 2 लोग मूवी सॉन्ग्स के हुक स्टेप्स निकाल रहे, ऑप्शन निकाल रहे. Meanwhile I source for the references of costumes and everything, जो भी setup वगैरह, art वगैरह. And same time then I work on my laptop for the ad films. So I think team is very important. Also team who are experienced. Now luckily I have a team of
9-10 पीपल जो काफी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने काफी सारे रियलिटी शोज किए, एड फिल्म्स भी किए, शूट्स भी किए, काफी सारे आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम भी किया है. सो दे ऑल नो हाउ डज इट वर्क. वैसे टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अरे वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक इंसान तो सब कुछ कर नहीं पाएगा. और अभी पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया ना. पहले the intention was very different. Abhi I've seen some reel where people are saying ki the dance is also made as per the reel ka frame. So if you see, the main artist is in a different vibrant color and background artists are all in very muted or gold colors. So people do it just so that you come in that frame, that 10 seconds of virality. So the thought process change hota hai. So how do you adjust to this, like the 90s and now the 20s? There must be so much changes, no? आई थिंक धीरे धीरे हर एक चीज अपडेट होती जाती है, अपग्रेड होती जाती है. एंड सो डज आवर ऑडियंस आल्सो. उस टाइम पे जो ऑडियंस थी वो अलग थी, आजकल की जो ऑडियंस है वो अलग है. इसलिए रील के भी, मतलब ये रील भी काफी इतना, टिकटॉक रील सब कुछ इतना क्यों मार्केट में इतना पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ऑडियंस देख रहे. अगर ऑडियंस इतना नहीं देखते तो इतना वायरलिटी होता नहीं, तो इतना ऊपर आता नहीं. पर ऑडियंस को अच्छा लग रहा है वो देखने के लिए. But do you think real artistry is taking setback because of this, like because of TikTok and social media? I think it's all mind game. क्योंकि बीच में मैं भी ऐसा मानता था कि यार सब कुछ खराब हो रहा है. रियल आर्टिस्ट आर नॉट गेटिंग दैट मच फेम और मनी जितना कि टिकटॉकर्स को या फिर रियल आर्टिस्ट को मिल रहा है. बट देन लेटर आई वाज लाइक यार मतलब ये बोल के मतलब नहीं, क्योंकि ये ऑडियंस ही तो कर रही है. वैसे ऑडियंस बहुत बार क्या होता है ना, अगर हम, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैंने अभी जस्ट मैं एक पॉडकास्ट पे गया था, मैंने सेम चीज उनको बोली कि जब आप अच्छा डांस कुछ देखते हो, आप जल्दी शेयर नहीं करते हो, आप देखते हो, आप कमेंट भी नहीं करते हो, यू जस्ट लाइक इट. बट द मोमेंट यू सी समथिंग सिंपल सा या समथिंग टाइप्स, आप तुरंत फॉरवर्ड करते हो हंसने के लिए, मस्ती के लिए, आउट ऑफ ह्यूमर की करो. पर वो फॉरवर्ड करने में और वो शेयर करने में आपने 3 लोगों को फॉरवर्ड किया, वो 3 लोगों ने और 9 लोगों को फॉरवर्ड किया. वो फॉरवर्ड करने में जो उसके शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, देन दैट गाय और दैट लाइक हुएवर, लड़का लड़की, दे स्टार्ट अर्निंग आउट ऑफ इट. एंड वैसे फिर हो रहा है. तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं गलती ऑडियंस की है. हम पीछे पीछे बीचिंग कर रहे हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, गलत बात ये कर रहे हैं, लेकिन फिर हम ही फॉरवर्ड कर रहे हैं वो चीज, एंड उसी को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो ये हो रहा है. पर ऑफकोर्स हाँ, यस, रियल आर्टिस्ट जो है कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिल जाता है. मतलब जो अगर जो विच वी आर ट्रू टू योर सेल्फ, ट्रू टू योर आर्ट, यू विल गेट अ प्लेटफॉर्म. बट बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं कि इनको ज्यादा मिल रहा है, इंपॉर्टेंस हमें नहीं मिल रहा है. एंड वो क्रिप करने के इसमें ना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं. बहुत सारे लोग आजकल क्या हो रहा है, कंप्लेंट ही करते बैठ रहे हैं, एंड दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग ऑन देयर सेल्फ. मतलब वो पूरा एनर्जी, पूरा टाइम दे आर पुटिंग ऑन कंप्लेनिंग एंड क्रिपिंग अबाउट कि यार ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है. But how does the pay in the industry work in the dance? Like for a beginner, like is there any motivation? Is there any good pay so that they can get into the industry? Like a lot of people are taking, जैसे आप बोल रहे हो कि a lot of people are taking setbacks. So what is your like tips on that, like the beginners? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप कंप्लेनिंग यार. मतलब अगर ऐसे कंप्लेन अगर मैं भी करते बैठूं, क्योंकि मैं भी ऐसे रील्स बनाता नहीं हूँ. मैं कभी एक आध कभी बना दिया क्योंकि मेरी वाइफ को पसंद है, अगर वो बोलती कि पॉल बनाते तो मैं बनाता हूँ. अदरवाइज अगर मैं कुछ भी बना, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर कंटेंट देखो, मैं मोस्टली, मेरा दोस्त है रोहन या फिर रूपाली, हम लोग जब बनाते तो हम लोग थोड़े से इंटरेस्टिंग बनाते, 1 मिनट का या 30 सेकंड का, बट देन वे हैव अ कॉन्सेप्ट टू इट. कॉन्सेप्ट के साथ, प्रॉप के साथ, गुड लाइटिंग के साथ, एक लाइक अ मूवी स्टोरी, हम वैसा कुछ करते हैं. लेकिन अगर मैं भी कंप्लेन करते बैठता तो शायद आज मैं इस पॉडकास्ट में नहीं होता. मेरे जितने भी अगर लोग मुझे जानते हैं वो मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता. मैं वही कहना चाहूंगा कि जितने भी न्यू कमर्स है, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. मतलब बहुत सारे वेज है, बट देन वी डोंट ट्राई, वी आर स्टक टू ओनली दिस वन थिंग. एंड वो होता है ना कि जब जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, जब मैं लाइक ऑफ स्क्रीन ऑफ कैमरा, कि जैसे आपने एक फोकस किया कि आपको कुछ करना है लाइफ में, लेकिन जैसे आपके कुछ दोस्त लोग कुछ और करते एंड दे डू गुड इन दैट थिंग, आपका माइंड डाइवर्ट होता है कि हमें भी वही करना है. लेकिन जब आपको सेम सफलता नहीं मिलती है, देन यू आर लाइक गलत हो रहा है यार, उसको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, देन यू स्टार्ट कंप्लेनिंग. पर और भी बहुत सारे रास्ते हैं where you can achieve something or the other. बस वो ट्राई करते रहना. This is a very different take on this, but अभी like you said, the timings are better, the discipline is better, a lot of things have changed. So television landscape has changed for the better, don't you think, compared to the movie medium, like in terms of unions or in terms of how people are remunerated? या मतलब काफी सारी चीजें अच्छी भी हुई है और बुरी भी हुई है.
जैसे आई डोंट गेट टू सी गुड मूवीज नाउअडेज, अगर वैसे बात करें, आई एम श्योर कि सभी लोग वो बात कर रहे हैं आजकल। Yes. एंड फिर कहीं ना कहीं हम कंपेयर करते फिर साउथ मूवीज को, एंड देन रियलाइज कि साउथ मूवी में कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो लोग ट्राई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे बॉलीवुड का ये प्रॉब्लम हो गया कि वी आर स्टक टू रेफरेंसेस, हर एक चीज में रेफरेंस लगता है। लाइक इवन इफ आई गो फॉर अ मीटिंग, फॉर एनी रियलिटी शो और एड फिल्म और मूवी मीटिंग, दे आस्क फॉर रेफरेंसेस कि पॉल तुझे सोचा कुछ रेफरेंस है क्या। उन्हें नया भी चाहिए पर उनके रेफरेंस भी चाहिए। तो अगर नया सोचे उसका रेफरेंस कैसे होगा, और अगर मैं रेफरेंस आपको दिखा रहा हूँ तो ये नया कैसे होगा। तो ये प्रॉब्लम है, दे आर वेरी वीक विद अंडरस्टैंडिंग द विजन ऑफ द कोरियोग्राफर और डायरेक्टर। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा पर ऐसा उन्हें कभी देखा नहीं है, देन दे आर लाइक कि यार नहीं बोल, और कुछ सोच, और कुछ सोच। और जैसी वही सेम चीज अगर मैंने उनको रेफरेंस के साथ दिखाया कोई हॉलीवुड मूवी का, साउथ का मूवी का, दिल भी लाइक हाँ यार दिस विल वर्क, चलो करते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर वैसा कर लिया तो फिर लोग फिर वो उस पे कमेंट करते, फीडबैक देते कि यार कॉपी। तो कहे वो ये एक गलत बात लगती है कि जहाँ पे कोरियोग्राफर का एक विजन है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, डायरेक्टर सोच सकता है, पर ये प्रोड्यूसर्स या फिर कुछ लोग होते हैं जो क्लाइंट्स होते हैं जो वो करने देते नहीं, क्योंकि वो डरे हुए रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट कि व्हाट द कोरियोग्राफर और द डायरेक्टर इज थिंकिंग विल वर्क और वोंट वर्क। तो ये एक थोड़ा पहले इतना होता नहीं था, पहले रेफरेंसेस पे इतने वर्क होते नहीं थे, पर आजकल सब कुछ रेफरेंसेस पे, तो वो एक थोड़ी गलत चीज हो गई। Creativity is dying because of it. Yeah, because of the references. Why do you think that is? Why is it that happening? As I said, कि they don't have, they are weak with vision. The clients or the producer जो पैसे डाल रहे, वो उनको उतना भरोसा है नहीं, प्लस उनको उतना नॉलेज नहीं है। How do we go back to the drawing board or recorrect things? Like you said, we love watching movies, but you don't see anything new. So how do you change that thought process? ये change करना मतलब किसी एक के हाथ में तो है नहीं, एंड आई थिंक ये कुछ सालों बाद चेंज हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, क्योंकि जैसे इसे मैं आपको अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, बहुत ही सिंपल है, पता नहीं कितना यू माइट लाफ। पहले बेल बॉटम बहुत वर्क करते थे पुराने ज़माने में, लेटर वी केम टू लाइक नो नैरो जींस, मुझे भी अच्छे लगने लगे, देन वी वेंट इनटू स्ट्रेट फिट, और फिर से बेल बॉटम का जमाना आ गया कि लोगों को अच्छा लग रहा है यार बेल बॉटम। और वही अगर ये कुछ 10 या 15 साल पहले मैं बेल बॉटम पहनने आता, आई वुड बी लाइक यार ठीक है, मुझे अमिताभ जी जैसा नहीं दिखना है, मतलब भले वो पॉपुलर है पर वैसा क्यों पहनना है करके, पर अब फिर से वो ट्रेंड आ गया। सो आई थिंक चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी वो डिसअपीयर होती है, एंड देन दे अगेन कम बैक टू लाइफ वैसे। सो ये होगा, कुछ साल लगेंगे। It's very interesting day. But what I feel is bell bottoms are made for Indian. So what looks good, we should stick with that. Yeah. I thought you would give the stock market example. I was waiting for that. So Paul, I have a question for you. How real is reality shows, and how much of it is scripted? अभी के इसमें it is real. पहले काफी स्क्रिप्टेड होता था, बट अभी काफी सारे कंटेस्टेंट्स ना वेल प्रिपेयर्ड आ रहे, तो उन्हें पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सो इतना स्क्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है। They are only scripting it. Yeah, correct. If you're talking about the results का पार्ट कि वो if it's scripted or no, आजकल नहीं होता है, पहले होता था, जहाँ पे they used to search for contestants who are like good looking, good with words, जो वायरल हो सकता है वैसे करके। पर अभी तो इतनी सारी चीजें वायरल हो जाती है, कोई भी टाइम पे हो जाती है, तो कोई अगर अच्छा गुड लुकिंग है तो कोई बात करने में अच्छा है, तो किसी का सोशल मीडिया पे अच्छा रीच हो, तो किसी का स्टेज प्रेजेंस अच्छा हो, तो कोई भी वायरल हो सकता है। सो रिजल्ट्स आज के इस पे रियलिटी शोज में स्क्रिप्टेड नहीं होता, इट्स ऑल रियल। So when they tell the story that he's from the poor background to create that emotional connect, is it true or is just made up? True. Okay. ये कभी मेडअप नहीं किया है, मतलब ये स्टार्ट से अभी तक कभी मेडअप नहीं किया है। प्रॉब्लम सिर्फ वो है ना, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने पूछा है कि सर हमेशा इन लोग रोते क्यों रहते हो, मतलब कि मेरी माँ को साड़ी चाहिए, ये चाहिए, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ करके। तो उसका आंसर ये है कि ऑडियंस क्या होता है ना, हर एक रियलिटी शो का जो भी सेगमेंट होता है, अलग अलग सेगमेंट्स, तो टीआरपी कैसे निकलता है सेगमेंट वाइज कि कौन से ड्यूरेशन में ज्यादा लोगों ने देखा है। तो हमेशा ये उनका सर्वे बताता है रियलिटी शोज का कि जब भी कोई रो रहा है, कोई इमोशनल हो रहा है, जहाँ पे फैमिली की बात हो रही है, ऑडियंस ज्यादा देखती है, तो वो सेगमेंट उनका हाई जाता है टीआरपी वाइज। तो जब उनको समझ में आ रहा है कि अगर ये सेगमेंट वर्क कर रहा है, यहाँ पे फैमिली और कनेक्ट हो रहे हैं, घर बैठे मम्मी पापा को अच्छा लग रहा देखने के लिए कि भाई इसकी मम्मी की इतनी प्रॉब्लम्स है, मेरी भी वही प्रॉब्लम्स है, मेरा बेटा भी करेगा, दे स्टार्ट कनेक्टिंग कि यार दे फील लाइक हाँ ये तो मेरी जैसी कहानी है, तो वहां पे टीआरपी बढ़ता है, विच इज वाई फिर हर एक रियलिटी शो पे
दे ट्राई एंड गेट पीपल जिनके ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो। Yes. तो किसी का भी वो लोग सब बनाते नहीं है कि भाई तेरी मम्मी बीमार है या तू गरीब है, ऐसा कभी होता नहीं है। बट ऑफ कोर्स जितने भी आते हैं ऑडिशंस के लिए सभी को पूछा जाता है, सभी का वो एक इंटरव्यू होता है। Do you have an angle you can हाँ talk कि भाई about? बताओ आपके घर पे कौन कौन है, क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, सब लोग बताते हैं ये है वो है, मैं ये कर रहा हूँ, अच्छे घर से हूँ, ये गरीब घर से जो भी है, खोद के और उनमें से कोई खोद के निकालते हैं। और उनमें से कोई अगर बंदा डांसिंग में भी अच्छा निकला, स्टेज तक पहुंच गया, वो थिएटर राउंड तक पहुंच गया, देन दे हैव दिस आंसर क्वेश्चंस टू आस्क। फिर अलग सा फिर लोग जजेस के थ्रू पूछेंगे, अरे आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कौन है आपके साथ, मम्मी आई, मम्मी क्या करती है, मम्मी ये करती है, चालू फिर बैकग्राउंड में एक इमोशनल म्यूजिक एंड देन फिर उधर रोना धोना। तो जो भी इंसान वहाँ पे कंटेस्टेंट्स रोते हैं वो रियल होता है। क्योंकि जब मैंने भी देखता था आई वाज लाइक यार इतना क्यों रोना है, बट व्हेन यू आर ऑन दैट स्टेज एंड आई एम श्योर कि कभी आप लोग भी अगर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो कोई भी फील्ड में, और अगर आपको पूछ लिया कि आपकी मम्मी के बारे में, तो वो एक इमोशनल टच होता ही है, वो कितना भी आप कंट्रोल करो वो हिट होता है वहाँ पे एंड यू विल बी इन टीयर्स। सो दैट्स ऑलवेज ट्रू। वो ऐसा ग्लिसरीन डाल के नहीं आता। Yeah, because मेरे को लगता था क्राइटेरिया ये है कि if you have a emotional story then you know you get extra 10 points to come. नहीं ऐसा कभी नहीं है। But of course, but if you have an emotional story and you're also good with dancing, then फिर उन लोग और पूछते रहेंगे आप। वो लोग ट्राई करेंगे जितना स्टोरी निकले, क्योंकि अगर और कुछ है नहीं तो और कुछ है नहीं बात करने के लिए अपार्ट फ्रॉम डांस। वो जितना मैंने देखा, जितना मैंने नोटिस किया। But a lot of slum area people are doing hip hop and coming up in the curve. So what is your take in that? Like dance is becoming a revolution now. It's not like before. It was just like for entertainment purpose people were doing it. So what is your take on that? I think it's good. मतलब there is something which is keeping them busy or active, you know. नहीं तो फिर ऐसा होता कि यार करे क्या लाइफ में। एंड क्योंकि डांसिंग इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है और इतना एनर्जी के साथ इतना फास्ट फॉरवर्डली ग्रो हो रहा है कि काफी सारे लोगों को वो मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक वे मिल रहा है जहाँ पे खुद का कुछ तो दिखाने के लिए। अदर पहले कैसा होता था कि आपको डांसिंग अगर बात करें तो डांस क्लास पहले ज्वाइन करो, आप वहाँ पे बेसिक सीखो, फिर आप कोई कंपटीशन के लिए अप्लाई करो, वैसे होता था। उस टाइम पे सिर्फ बुगी वुगी था सिर्फ। पर अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स खुल चुके हैं, इतने सारे चैनल्स पे, अभी अगर मैं नाम लूं तो अराउंड कुछ 10 रियलिटी शोज तो चल ही रहे। तो छोटे से लेके बड़ों के लिए सभी के लिए वो मौका है। यहाँ तक कि सुपर मॉम्स भी आया था बीच में, तो मॉम्स के लिए भी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आ गया था कि भाई जो मैं उस टाइम पे नहीं कर पाई थी अब मौका है। एंड जब सुपर मॉम्स परफॉर्म कर रहे तो घर बैठे सभी फैमिली लोगों को मन करता है देखने के लिए, यार मॉम्स परफॉर्म कर देखते हैं कौन अच्छा है कौन कैसे है, वैसे करके। सो आई फील हैप्पी कि मतलब अभी जितने भी ये स्लम एरिया से आ रहे या फिर अच्छे घर से जो जहाँ से भी आ रहे, दे आर ऑल इनटू डांसिंग। एंड क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ना इतना इजी हो गया है दिखाना कि देखो मैं भी हूँ इस दुनिया में, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स है तो ही आप वायरल होंगे, नहीं। अचानक से कोई भी एक वीडियो हिट हो गया, वो वायरल हो गया, फिर आपके फॉलोअर्स बढ़ गए। फिर ये भी होता है कि आजकल की जिनके फॉलोअर्स या फिर अगर कोई वीडियो वायरल हुआ है एंड उनका रिच अच्छा दिख रहा है तो उनको डायरेक्ट कॉल भी आता है रियलिटी शो से, जहाँ पे आप आओ, आपको ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है। मतलब ऑडिशन देने की जरूरत है जिन आपको इतने राउंड्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वीडियो हमने देख चुके हैं, तो आप फिर से फर्स्ट राउंड से क्यों ही दोगे। तो आप आओ, सीधा आप थर्ड राउंड में आ सकते हो, सीधा आप थिएटर राउंड के लिए आ सकते हो, ताकि उनका उतना टाइम थोड़ा बच जाएगा। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि इसका रीच अच्छा है इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे, सो दिस विल हेल्प आवर रियलिटी शो ऑल्सो, दिस विल हेल्प आवर चैनल ऑल्सो, दिस विल हेल्प आवर शो ऑल्सो टू गेट दैट अट्रैक्शन ऑडियंस का। वैसे No, like Kingslayers, they went on to win at a global stage. These kids come from these slum areas and they make these dance crews. So I think recently Britain's Got Talent or something a couple of years back, an Indian team only went, and all their stories are that only. They're like kids that are assembled from these areas. So how important is dance to, you know, I think equalize the wealth, divide the gap, and how good is it as an art form key that is helping bridge that gap? As I said कि earlier there were not मतलब उतने ऑप्शंस थे नहीं पहले, पर अभी इतने ऑप्शंस आ चुके हैं ना कि हर कोई कमा पा रहा है उससे। Everybody is being able to earn. जैसे कि अगर ज्यादा फॉलोअर्स ना हो तो भी चलेगा, पर अगर आपका रीच अच्छा हो then you start getting this paid promotions, collab, you know, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स के आते हैं, फिर आपको पूछा जाता है कि इतने पैसे, इतने महीने के इतने पैसे, या फिर एक पोस्ट का इतना पैसा।
सो सभी लोग कमा पा रहे हैं उस चीज से, स्लम एरिया से जो भी है। So I think it's very good कि पहले इतना था नहीं, ड्यूरिंग माई डेज ये सब इतने ऑप्शंस थे नहीं, एंड उस टाइम पे मैंने उतना ध्यान भी दिया नहीं कि सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए। तब तो लोग सिर्फ करते जा रहे थे, जिसको हम टिकटॉक बोलते थे, लोग सिर्फ रैंडमली वीडियोस डाल रहे थे कुछ भी, हम बहुत लोग उनको चिढ़ाते भी कि यार क्या कर रहे हैं, क्या वीडियोस फालतू वीडियोस है। अब जाके वही लोग सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। हाँ, एंड आई एम सो हैप्पी, चलो वो तो अर्न कर रहे हैं, व्हिच इज गुड, क्योंकि अगर जिसको भी जो भी तरीका मिलता है अर्न करने का फॉर देयर फैमिली, गुड थिंग। आई एम हैप्पी फॉर दी अदर पीपल ऑल्सो। जैसे स्लम एरिया की बात हो रही है, तो मेरे बहुत सारे पहचान के हैं, जैसे उदय करके एक बंदा है, वो कहाँ से मुझे पता नहीं, पर वो और उसकी टीम, he was in this डांस दीवाने शो ऑल्सो, उदय, एंड वो एक स्लम से आता है जहाँ पे उसके अभी फॉलोअर्स कुछ 1.7 मिलियन या 2 मिलियन फॉलोअर्स है। तो उसके साथ उसकी जो पूरी टीम है छोटे छोटे बच्चों की, वो सब अर्न कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका रिच अच्छा है इंस्टा पे, उन्हें वो पेड प्रमोशंस और पेड कोलैब्स वो सब मिलते जा रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड, बहुत लोग कमा पा रहे हैं। नहीं तो फिर अगर ये नहीं होगा तो फिर और क्या ही होगा। अगेन फिर आप उन्हीं बच्चों को देखोगे यहाँ वहाँ सिग्नल पे टॉयज बेच रहे हैं या फिर कपड़े बेच रहे हैं या फिर वही भीख मांग रहे हो, वैसे होगा। सो आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट काफी सारे लोग, काफी सारे बच्चे रुक गए उस लाइन पे जाने से, क्योंकि सोशल मीडिया की तरह लोग इतने एक्टिव हो गए। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि खराब चीज भी सोशल मीडिया, पूरा टाइम फोन पे रहना, पर ठीक है यार, काफी कुछ इंफॉर्मेटिव भी है, मतलब काफी सारी इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं, काफी सारा नॉलेज भी मिलता है, काफी लोग अर्न भी कर पा रहे हैं। सो डांस एज अ फिटनेस, व्हाट इज योर टेक? लाइक वी अंडरस्टैंड कि डांस इज डन फॉर viewing purpose and entertainment purpose, but as a fitness, what is your take on that? फिटनेस की बात तो मैं डर जाता हूँ, मैं फिटनेस में नहीं हूँ। But all dancers must be fit only. हाँ, actually. Not necessary, but like, compared to, see, I am not fit enough, I think. but it keeps you active, yeah, it keeps you happy. मतलब फिटनेस तो आपको, अगर आपकी बॉडी मूव हो रही है, कोई ना कोई एक एक्टिविटी तो लाइफ में होनी चाहिए। मतलब अगर आप जिम करो तो वेरी गुड, अगर आप जिमिंग ना करो तो आप कोई तो स्पोर्ट्स में हो, कि आप फुटबॉल खेलने जा रहे हो या फिर वॉलीबॉल खेलने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो। अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो पर आप डांस कर रहे हो, तो बॉडी के लिए अच्छा है, इंटरनली और बाहर से भी। यू स्टार्ट लुकिंग गुड, योर स्किन स्टार्ट लुकिंग गुड, एंड ये तो अलग बात है, बट इट कीप्स यू हैप्पी। लाइक मेरा तो वही है। फिट की बात तो मुझे पता नहीं, फिट का पता नहीं, बट आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई डांस, और व्हेन आई लाइक आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन आई वर्क। तो मैं घर पे जब भी रहता हूँ, मुझे ऑफ डेज मिलते हैं, मैं बहुत ही सैड रहता हूँ। मुझे ऐसा होता है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे पता नहीं करना क्या होता है, क्योंकि मैं इतने सालों से बैक टू बैक रियलिटी शोज करते हैं, शूट्स करते आया ना। एक टाइम था जब मैं नई नई कार ली थी, एंड मैं पूरा टाइम धर्मेश के घर पे रहता था। सो माई सेल्फ, राहुल एंड धर्मेश, हम लोग एक साथ ही रहते थे, क्योंकि पूरा काम वेस्ट में होता था, मेरा घर ईस्ट में था उस टाइम पे। तो मैं गाड़ी में एक ट्रॉली बैग विद कपड़े बहुत सारे, 7 पेयर ऑफ शूज बाहर रहता था। हफ्ते में 2 बार घर पे आता था, मम्मी को हाय हेलो करके चाय भी पी के नहा के वापस निकलता था धर्मेश के घर पे। पूरा यही था। तो हाँ, बट अब ऐसा हो गया है कि यार, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई, तो अब मैं घर पे रहता हूँ वाइफ के साथ, मम्मी के साथ। तो अब जब भी मुझे ऑफ डे होता है, मैं घर पे आता हूँ, आई एम लाइक कंफ्यूज कि करना क्या है, क्योंकि इतनी आदत है नहीं घर पे बैठने की। लाइक पूरा टाइम मैं टीवी देखते नहीं बैठ सकता हूँ, तो वो है। सो व्हेनेवर आई एम वर्किंग, आई फील वेरी हैप्पी। सो या दैट वे कि फिटनेस तो है ऑफ कोर्स, बट इट्स मोर about the mental thing. Yeah, mental health also, like I think it helps because it gives you that dopamine rush. So that is, at the end of the day, it's helping you doing that. So I wanted to talk to you about the Rocky and Rani Prem Kahani, where I think Tota Roy Chaudhary, if I didn't get his name right, he and Ranveer, they had this segment where they did the classical dance. So normally classical dance, especially Kathak or Bharatanatyam and all, it's very considered feminine माना जाता है उसको. So when they performed it that way, so do you have anything to add to that? Ki are these dance forms not gender based, and like it looks so graceful? No, it's not gender based at all, and I'm so happy. I was so happy to see Ranveer do that thing, क्योंकि वो easy नहीं है, क्योंकि वो डांस फॉर्म में वैसे जहाँ पे आपकी कला है, वो ग्रेस ऐसा होता है, एंड फिर भी वो परफॉर्म करना, क्योंकि डांस फॉर्म क्या है, इट्स अ लैंग्वेज वेयर यू फील हैप्पी, मतलब यू नो। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त है, कुमार है, आशीष पाटिल है, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो इतना बढ़िया करते हैं क्लासिकल फॉर्म। आप देखोगे आप पागल हो जाओगे, आप बोलोगे कि यार ये है, मतलब ये लेवल है करके। तो ये जेंडर बेस्ड तो बिल्कुल नहीं है। एंड पहले
फिर से वही बात कि पहले लोगों का ऐसा बोलना होता था कि यार क्यों नाच रहा है, क्यों क्लासिकल कर रहा है, फिर वो नचनिया वर्ड यूज करते थे। Exactly. बट धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो गया है। जितना मुझे लगता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कुछ चीजें करो, उसका अगर कुछ रिजल्ट मिलता नहीं ना, देन पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग। ये सिंपल सी बात। पर जैसे आपको उसके अराउंड रिजल्ट मिल रहा है, यू स्टार्ट अर्निंग आउट ऑफ इट, फैमिली को भी पैसे मिल रहे हैं, तो सबका मुंह बंद हो जाता है। But do you think more men, like changes हुए हैं उसके बाद कि more men have embraced this style of dancing and what is the future of classical dance in regards to male a lot. बहुत सारे मैन अभी वो करने लगे and it's looking good on them. Yeah. ऐसा भी नहीं कि गंदा लग रहा है। Not एक होता है ना कि grace. मतलब कि जबरदस्ती लग रहा है, कहीं कभी कुछ वल्गर लगता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। एंड आई थिंक आजकल क्योंकि डांस से इतना इवॉल्व हो गया है, उसमें फिर ये सारे डांस फॉर्म भी इतने नोन हो चुके हैं, पहले पता नहीं था क्या कौन से क्या फॉर्म। थैंक्स टू बूगी वूगी एंड डीआईडी जिन्होंने बताया कि भाई कंटेम्प्रेरी क्या होता है, हिप हॉप क्या होता है, क्लासिकल क्या होता है, तो अभी लोगों को समझ आ चुकी है। एंड जब लोग प्रॉपर ट्रेन होके उसमें आगे बढ़ते हैं तो और अच्छा दिखता है। I love that segment, but like that was a highlight, I think, of that movie. Any fun moments or behind the scene moments in any art form, like in TV or movies, with any actors or anybody that you want to tell us about? Directors, producers, anybody? फन मोमेंट्स एज सच तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट लेकिन देयर आर बहुत सारी मेमोरीज अच्छी। फन तो नहीं, बट देन दिस वन मेमोरी, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी दिल के करीब है। जब फर्स्ट टाइम आफ्टर माई DID एंड एवरीथिंग, आफ्टर मैनी ईयर्स, मुझे रेमो सर का कॉल आया, मुझे और राहुल को, एंड ही वाज लाइक कि ऑफिस आ जाओ, बात करनी है। सर बुला रहे थे, मतलब कुछ तो होगा, कुछ तो काम ही होगा, कुछ तो असिस्ट या इवेंट का होगा। हम लोग गए, फिर सर ने एक गाना सुनाया, वो गाने का नाम है हैप्पी आवर में। तो सर ने गाना सुनाया और हमने बोला कि यार सर बहुत अच्छा गाना है, ये तो बहुत चलेगा गाना, बहुत अच्छा गाना है करके। ही वाज लाइक हाँ ये प्रभु देवा का गाना है, प्रभु देवा विल बी परफॉर्मिंग ऑन दिस। बोला सर क्या बात कर रहे हो, तो बहुत माइंड ब्लोइंग कर रहे हो, तो मचा देंगे करके। ही वाज लाइक हाँ तुम दोनों कोरियोग्राफ करोगे। Wow. एंड हम लोग ऐसे थे कि यार, क्योंकि प्रभु देवा ये नाम इटसेल्फ इज सो बिग डांसर्स के लिए, मतलब वो तो भगवान माने जाते हैं। एंड जब सर ने कहा कि तुम दोनों कोरियोग्राफ करोगे, सो ही वाज लाइक कि सर आप चाहते हो कि हम लोग असिस्ट करें आपको या हम लोग कोरियोग्राफ करें? ही वाज लाइक नहीं, यू गाइस विल बी द ऑफिशियल कोरियोग्राफर फॉर दिस सॉन्ग। एंड फिर वो दिन, वो मोमेंट, वी वर लाइक यार ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब पता नहीं आगे कितना सक्सेसफुल होगा, पर इस सर ने पूछा, ये उनका ट्रस्ट हम पर, मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट। फिर हमने कोरियोग्राफी की, रेमो सर को दिखाया, उनको अच्छा लगा। फिर वो दिन था जब सर ने बोला कि आज प्रभु सर आ रहे, तो बोला कि यार प्रभु सर आ रहे हैं, उनको मतलब सामने से देखा था पहले भी, लेकिन फर्स्ट टाइम सामने देखेंगे, लाइक आई कांटेक्ट होगा, सामने बात होगी, सर मतलब पॉल करके नाम से बुलाएंगे। तो फिर सर आए, सर को आदत है ऐसा खड़े रहने का, प्रभु सर को ऐसे खड़े रहते हैं, हाँ शो मी ऐसा करके। फिर हमने पूरा दिखाया। अब डर तो लग रहा है, मतलब हमने उतना अच्छे से नहीं दिखा क्योंकि सामने सर खड़े, उनसे हमने क्या ही फाड़ के दिखाया, कॉन्फिडेंस थोड़ा तो लो होगा। हमने पूरा करके दिखाया। ही वाज लाइक शो मी वंस मोर, ठीक है सर दिखाया करके। एंड उन्होंने फिर साथ में किया, मतलब उन्होंने साथ में फिर परफॉर्म किया हमारे। अच्छा, he learned it like हाँ, वो खड़े उन्होंने सीख लिया। तब समझा कि भाई ये इंसान बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मतलब जो लगता है ना कि भाई इतने बड़े डांसर है, इतने बड़े परफॉर्मर है, ये एक्चुअल में उससे काफी बड़े है। उन्होंने खड़े पूरी कोरियोग्राफी सीख ली। वो भी नहीं था कि पॉल इसके बाद क्या है। एंड हम लोग ऐसे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, कुछ तो डाउट होगा। वो 2-3 बार देख के सीख लेते हैं। तो तब हमें समझा कि यार हम तो काफी दूर है, मतलब इनके आसपास भी नहीं आ सकते। मतलब ऐसा अगर बनना है तो हमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो दैट वाज लाइक हैप्पी मोमेंट फॉर अस एंड एज वेल एज सरप्राइजिंग कि सर इतने क्विक है करके। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत क्रेजी था। ऑल्सो मैंने बहुत साल पहले मैंने पप्पू मालू करके एक कोरियोग्राफर से हु डज मूवी सॉन्ग्स, उनको मैंने असिस्ट नहीं किया था। आई वाज इनटू डांसिंग, करेक्ट, बैकग्राउंड डांसिंग। तो तब मैंने ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गया बैकग्राउंड डांसिंग का। और वो मूवी था किंग है, अक्षय कुमार है, तो बैकग्राउंड डांसिंग पीछे परफॉर्म करने मिलेगा। तो उस गाने में अक्षय कुमार वॉक करता है, तो बैकग्राउंड डांसर्स थे, पर मुझे जो मिला था, मैं और मेरे 2-3 लोगों को, हमें जो मिला था पोजीशन, अक्षय कुमार के बाजू में ना कुछ 2-3 सेंटा क्लॉस थे जिनको वॉक करना, सेंटा क्लॉस।
तो मुझे वो रोल मिला था। सो आई वाज इन द सेंटा क्लॉज आउटफिट, पूरा मास्क लगा के, एंड आई वाज लाइक अरे यार ये क्या हो रहा है लाइफ में यार, मतलब तो अक्षय कुमार सर है यहाँ पे और तुम उनके बाजू में से जा रहा हो, वो आई थिंक सिंग इज किंग ही था। एंड उसके बाद सालों बाद अब जब मुझे मौका मिला रेमो सर को असिस्ट करने का फॉर हाउसफुल 5, जहाँ पे मैं अक्षय कुमार सर के घर पे गया था, आई थिंक इट स्टेज इन जू ओनली समवेयर, तो उनके घर पे गया था मैं सिखाने के लिए, तो उनको सारे हुक स्टेप्स सिखाया, फिर उनको वही था उनका कि पॉल और कुछ दिखा, तो वो हुक स्टेप भले मैंने बहुत सारे ऑप्शंस निकाले, लेकिन वो जो डायरेक्ट कांटेक्ट जो हो रहा था, क्योंकि अक्षय कुमार सर ने फिर अगले दिन सुबह मुझे कॉल किया, यू नो मतलब बहुत बड़ी बात है, उन्होंने अपने खुद के नंबर से कॉल किया, मैंने उनका नंबर सेव किया है, उन्होंने कॉल किया कि पॉल यार तो कुछ ऑप्शन निकाला है क्या, तो वीडियो भेज, फिर मैं निकाला, देन ही वाज लाइक रेमो सेंड पॉल टू माय प्लेस, मुझे और सीखने करके, तो आई वाज सो हैप्पी कि वो मुझे नाम से बुला रहे करके, तो ये चीजें अच्छी लग रही है। फिर देन रियलिटी शोज के बाद व्हेन ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये काफी इंटरेस्टिंग था। लॉकडाउन के वक्त क्योंकि सब लोग घर पे बैठे थे, एंड तब मैंने सोचा क्या करूं, मुझे डांस करना है, कुछ तो करना है, तो मैं घर पे वीडियोस बनाने लग गया। तो मेरे रूम में एक छोटा सा एक जैसा स्मॉल स्टूल, उस पर बैठ के मैं कोरियोग्राफी कर रहा था, एंड मैं उन चीजों पे कोरियोग्राफी कर रहा था जो कि गाने नहीं थे, पर बहुत सारे मोनोलॉग्स निकल रहे थे लॉकडाउन के वक्त। आयुष्मान ने कुछ मोनोलॉग निकाला था, पंकज त्रिपाठी ने, इसने उसने बहुत सारे मोनोलॉग्स निकले थे, तो मैं उस पर कोरियोग्राफ करने लग गया था। तो मैं देखा कि वो काफी अच्छा चलने लग गया उस टाइम पे, उसका रिच अच्छा हो रहा था, तो उस पर आयुष्मान ने कमेंट किया। फिर एक ऋतिक रोशन का भी था कि डर से मत डर, मैंने उस पर एक कोरियोग्राफी की थी, तो ऋतिक रोशन ने उस पर कमेंट किया था। फिर शिल्पा शेट्टी, एंड देन मैंने देखा कि आयुष्मान started following me on Instagram, ऋतिक रोशन started following me on Instagram, शिल्पा शेट्टी started following me on Instagram, वरुण धवन follows me on Instagram। मतलब वो भले उन्होंने उस स्पैन ऑफ उस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में उन्होंने फॉलो किया होगा, बट आई एम सो हैप्पी कि यार ये सब बड़े लोगों ने फॉलो किया करके। एंड अभी भी ना कभी कभी मतलब ऐसा फनी सा है, मैं अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मैं फिर से चेक करता हूँ इंस्टाग्राम पे जाके, स्टिल फॉलोइंग ये वो कर रहे मतलब लेना देना कुछ है नहीं, पर होता है ना कि भाई शायद उसी टाइम पे किया होगा एंड देन अनफॉलो, क्योंकि उनके अगर फॉलोअर्स आप देखो, फॉलोअर्स उनके कुछ 700 फॉलोअर्स हैं, 350 फॉलोअर्स है। अब सिर्फ 700 फॉलोअर्स में 350 फॉलोअर्स में मेरा क्यों होगा, मैं चेक करता हूँ, हाँ शिल्पा शेट्टी स्टिल फॉलोइंग मी, ऋतिक रोशन स्टिल फॉलोइंग मी, ठीक है। तो ये मुझे बहुत फनी लगता है, मैं फिर खुद पे हंसता भी हूँ, क्या कर रहा हूँ यार मैं। But it's so this now that you've been in this industry for so long, you still feel awe with these people. हाँ यार मतलब वो सब बहुत सब बड़े कलाकार हैं। I mean Ayushman and all. I loved him in Badayor and that where he played a cop. Na, I forgot the name of that. So I was doing this one reality show called Dance India Dance Battle of Dance, Battle of Dance का battle, something like that, DID Battle of Dance, जहाँ पे 4 अलग जोन्स थे, वेस्ट का सिंगम, साउथ का समथिंग, एंड आई वाज हैंडलिंग वेस्ट का सिंगम, मी विथ माय कंटेस्टेंट्स टीम। तो एक एपिसोड था जब टुवर्ड्स इन बिटवीन जस्ट 4 हफ्ते फिनाले के पहले, जहाँ पे मेरा कोई आउट हुआ ही नहीं था, मेरे बहुत सारे लोग बचे थे, और उस टाइम पे आयुष्मान आया था और कोई तो आई थिंक नुसरत या कोई तो आई थी शायद, अच्छा their movie had come वो या some sequel Dream Girl 2, हाँ शायद वैसा कुछ। तो उस वक्त ऐसा था कि हमें भी परफॉर्म करना था, स्कीपर्स along with their remaining contestants। तो अगर आपका एक कंटेस्टेंट बचा है, आपको उसके साथ परफॉर्म करना है, अगर आपके 2 बचे तो आपको 2 परफॉर्मेंसेस करने हैं। मेरे 3 बचे थे, बाकी सबकी 1-2 मेरे 3, तो आई हैड टू डू लाइक 3 परफॉर्मेंसेस। तो एक डुएट था प्रांशु कुलदीप, उनके साथ मैंने लिरिकल परफॉर्म किया। एक थी मानसी जो इंडियन करती है, तो उसके साथ मैंने एक फ्री स्टाइल किया जो वो इंडियन कर रही थी और मैं अलग कुछ कर रहा था। और एक था अक्षय पाल, उससे डू पॉपिंग, मैंने उसके साथ पॉपिंग किया। तो मैंने 3 परफॉर्मेंसेस किए एंड आयुष्मान गॉट सो सरप्राइज, उसने इतना अप्रिशिएट किया क्योंकि मैंने सबसे पहला अक्षय के साथ परफॉर्म किया पॉपिंग, फिर मैंने मानसी के साथ किया आंखों की गुस्सा किया, एंड थर्ड जो परफॉर्मेंस था विच वॉज एन इमोशनल एक्ट ऑन अ मराठी सॉन्ग बाबा, जहाँ पे मैं पूरा ऐसा ना बुढ़ा बन के मैंने परफॉर्म किया प्रांशु कुलदीप के साथ। सो आयुष्मान ने बहुत तारीफ की थी, सो आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि आई थिंक उसी के बाद, एंड ये लॉकडाउन के पहले था, करेक्ट लॉकडाउन के पहले था, तो ऑलरेडी उसने वो देखा था डांस, उसको नाम याद था पॉल करके, एंड देन लॉकडाउन में उसने देखा है मैंने जो मोनोलॉग पे एक परफॉर्मेंस रेडी किया था, तो सब कुछ कनेक्ट होते हुए फिर उसके बाद जितनी बार मैं उसको मिला उसने लाइक हमेशा याद रखा है कि पॉल हाउ आर यू करके, सो आई फील सो गुड कि उसे याद हो करके।
फिर रिसेंटली जब लास्ट जब मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट किया था, सुपरवाइज किया था, मी अलॉन्ग विद प्रतीक उतेकर, वी बोथ वर दी हेड कोरियोग्राफर्स अलॉन्ग विद आवर टीम. तो काफी सारे परफॉर्मेंसेस अच्छे हो रहे थे एंड दैट वाज आवर लाइक फर्स्ट सीजन ऑन इंडियाज गॉट टैलेंट. तो काफी सारे परफॉर्मेंसेस अच्छे हो रहे थे. एक परफॉर्मेंस था अनुष्का चटर्जी आई थिंक, हु यूज्ड टू डू कंटोशन. तो उसका एक परफॉर्मेंस हमने सोचा था जहाँ पे स्टेज जो होता है ना, स्टेज के नीचे एक जगह होती है. मैं सोचा कि इसके नीचे परफॉर्म कराते इसको, क्योंकि स्टेज पे सब लोग परफॉर्म करते ही है. थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए, थोड़ा न्यू एंगल देने के लिए स्टेज के नीचे का मैंने पूरा एरिया देखा, पूरा साफ कराया एंड पूरा परफॉर्मेंस उसका नीचे कराया. एंड उसी दिन कुमार सानू सर आए थे, विशाल सर आए थे, विशाल दडलानी, एंड बादशाह सर तो थे. तो वो परफॉर्मेंस जब उन्होंने देखा, वो इतने पागल हो गए. उन्होंने सबको स्टेज पे बुलाया, बहुत तारीफ की. बादशाह केम ऑन स्टेज और उन्होंने हम सबके पैर पड़े. Wow. तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है जो मतलब लाइफ टाइम रहेगा मेरे साथ. But that's so cute. तो ऐसे वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीजें जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारी. Nice. We can have another podcast just for this topic. Yeah. I still remember जब मैं सुपर डांस सीजन 2 कर रहा था विद मुस्कान, और एक परफॉर्मेंस था जिसके बाद जब रेखा जी आई थी. सबसे ब्यूटीफुल है वो एक्ट्रेस, बहुत प्यारी है. और उनकी बेस्ट पार्ट ये है कि वो जो भी रियलिटी शो पे जाती है ना, वो हमेशा एक होमवर्क करके आती है हर एक कंटेस्टेंट का. मतलब पता नहीं कैसे वो कोई एक्टर्स के बहुत फेक लगते हैं when they say about the dance. जेन्युइनली ये देखती है. मतलब अगर ये जा रही, उन्हें पता है कि यहाँ पे 6 कंटेस्टेंट्स है, 6 कोरियोग्राफर्स है, उनका एटलीस्ट पिछले 2 परफॉर्मेंस तो देख के आएगी, उनका थोड़ा बैक स्टोरी वो पता करके आएगी. तो यहाँ पर भी जब आई, उन्होंने इतने प्यार से बात किया, और वो जिस तरह से वो जब बात करते रेखा जी, आई स्वेयर ऑन गॉड कि जब बात करते हैं आपका ध्यान हटेगा ही नहीं. एंड उन्होंने, मेरे पास भी फोटो है, अभी फिलहाल इधर तो नहीं है, बहुत प्यारा फोटो जहाँ पे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो चूम रही हाथ को. एंड उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि यार आंटी जी मैं आपके बेटे को अडॉप्ट कर रही हूँ करके. तो मेरी मम्मी तो पागल होगी कि एक तो रेखा जी उनसे डायरेक्टली बात की और रेखा जी बोल रही कि आंटी मैं आपके बेटे को अडॉप्ट कर रही हूँ करके. तो ऐसा था मैं. Very cute. Very cute. Very genuine, I guess. And she still looks so young, good. She's never aging. और उनका ह्यूमर Yeah. बहुत क्रेजी है. उनका ह्यूमर बहुत, वो उनके वन लाइनर्स बहुत क्रेजी है. So Paul, let's do a fun rapid fire round. Whatever comes first in your mind. चलो. So first is favorite dance style. Lyrical. One Bollywood actor that surprises you with their dance skills. प्रभुदेवा सर. One Bollywood actor that doesn't surprise you with your dance skills. What you see is what you get. तुषार कपूर. One song that always makes you want to dance. सुंदरी सखी फ्रॉम हमसे मुकाबला. Dream collaboration. ड्रीम कोलैबोरेशन. ऋतिक रोशन. The best of all the dance platforms, which is the best? DID or reality? I think DID. DID. मतलब बोलते ना कि रियलिटी शोज का बाप. Okay. हाँ, that will always remain the बाप. Right now, of course, Dance Plus also, but क्योंकि DID से बहुत कुछ Started शुरुआत the हुआ है. era, हाँ, काफी सारे लोग जो अभी मूवीज भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे राघव भी हो गए, सब कुछ, या धर्मेश, सब DID से निकले हुए हैं, तो इसलिए. Right. Actually. Oh, and one more thing. Lastly, I heard that you have Akshay Kumar's number by your own words. Can you please tell him to give us a shout out? That'll be great. अक्षय कुमार को कॉल करो अभी. Yeah. पक्का. Shout out to Healthy Naris. पक्का. Yes. Yes. Hook step भी बता देना तुम. श्योर ना. ये नेटवर्क नहीं यार, बाद में करता हूँ. मैं भेजता हूँ. नेटवर्क नहीं. It was so close. So if you enjoyed this fun and different podcast and delved into the world of dance and reality shows, do follow, share, like, subscribe, leave comments if any other guests you want us to call. And thanks so much to take your valuable time and almost got us Akshay Kumar shout out. Thank you. Thank you. Thank you.